میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 2022 کا الیکشن تمام پارٹیاں آپ کے درمیان میں ہے. ہر کوئی اپنے جیت کے دعوے کر رہا ہے. سماجوادی پارٹی ہو یا بی ایس پی یا کانگریس یا بی جے پی، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری سرکار آ رہی ہے. سماجوادی کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ آپ ہم کو ووٹ کریے ورنہ بی جے پی آ جائے گی. بی جے پی ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کا خوف دکھا کر کے کہہ رہی کہ آپ ہمیں ووٹ کریے. دونوں ایک دوسرے کا خوف دکھا کر کے ووٹ مانگنے کا کام کر رہے ہیں. لیکن مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے نام پر ووٹ کریے. جو ہمارا مورچہ بنا ہے جس کے کنوینر بابو سنگھ کشواہا صاحب ہے، بھاگیداری پریورتن مورچہ، جس میں جناب وامن میشرام صاحب کی بہوجن مکتی پارٹی بھی ہے، ایم آئی ایم پارٹی اس کا حصہ ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نے 74 سال میں کبھی بھی نامنہاد سیکولر پارٹیوں کو اپنی پارٹی مانا. آپ نے کبھی بھی فاسسٹ طاقتوں کو روکنے کے لیے ان پارٹیوں کے جھنڈے اور ڈنڈے کو اپنے کندھوں پر رکھا، زندہ باد کے نعرے لگائے. آپ نے ووٹ دیا، نوٹ دیا، سپورٹ کیا اور انہیں اقتدار کی کرسیاں دی. لیکن آپ کو کیا ملا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آج کیا وجہ ہے کہ اس پردیش کا نہیں بلکہ پورے دیش کا، جو دیش کی سب سے بڑی اقلیت ہے، وہ آج پچھڑی ہوئی ہے؟ چاہے آپ رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ دیکھیں، چاہے آپ کنٹو کمیشن کی رپورٹ یا سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ دیکھ لیجئے، مسلمان دلت سے بدتر زندگی گزار رہا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لٹریسی ریٹ ہمارا کم ہے. 40% مسلم عورتیں جاہل ہیں، پڑھی لکھی نہیں ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے علاقوں میں اچھے اسکول نہیں ہیں، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم نے تو اپنی پارٹی نہیں بنائی، ہم نے تو اپنا کوئی لیڈر نہیں بنایا. ہم نے سماجوادی کے لیڈروں کو اپنا لیڈر مانا، کانگریس کے لیڈروں کو اپنا لیڈر مانا، بی ایس پی کے لیڈروں کو اپنا لیڈر مانا. لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی. اگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو آج اتر پردیش کے اندر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب یا مجلس اتحاد المسلمین کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن ہم یہاں اگر آئے ہیں تو ہم یہاں پر کوئی منسٹر بننے کے لیے نہیں، بلکہ ہم انصاف چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. وہ انصاف آپ کو کیسے ملے گا اور کب ملے گا؟ گھر میں بیٹھ کر کے آپ انصاف حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا، آپ کو اپنا سیاسی پلیٹ فارم بنانا پڑے گا. جس سماج کا اپنا سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہوتا اس سماج کی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا این آر سی CAA کے مدعے پر اگر کوئی آواز تھی تو وہ ایک آواز تھی، نقیب ملت جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی آواز تھی. اخلاق کی لنچنگ ہوئی، سب خاموش تھے، کسی نے نہیں بولا. لیکن ایک شخص جو کہ 1400 کلومیٹر دور حیدرآباد سے چل کر کے اخلاق کے گھر پر گئے. آپ نے دیکھا کہ ہاپوڑ کے اندر قاسم کو مارا گیا، کوئی نہیں بولا، سب خاموش تھے. ایک بھی MLA جو ہمارے سماج سے تعلق رکھتا ہے، منسٹر بھی تھے، لیکن سب خاموش تھے. مجلس اتحاد المسلمین گئی، میرے قائد نے مجھے بھیجا، کہا شوکت صاحب جائیے، وہاں پر گڑبڑ ہوئی. میں نے جا کر کے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ان لوگوں کی مدد کی. ٹانڈا اکبرپور کے اندر عبدالقیوم کو مار دیا گیا، لنچنگ ہو گئی، سارے لوگ خاموش تھے. سماجوادی بی ایس پی کا ضلع صدر بھی نہیں جاتا ان کے دروازے پر. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سمجھو آپ آج کیوں آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. آج آپ کا خون پانی سے بھی سستا ہو چکا ہے. جب ان کی سرکار بنتی ہے، وعدے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ سرکار آئے گی تو ہم ریزرویشن دیں گے، سرکار آئے گی تو ہاسپٹل بنائیں گے، سرکار آئے گی تو ہم پولیس میں بھرتی دیں گے، سرکار آئے گی تو آپ کے علاقوں میں اسکول بنائیں گے. لیکن کیا آپ بتائیے 2012 سے لے کے 17 تک میں پورن بہمت کی سرکار تھی، کیا ملا آپ کو؟ ای رکشا. ہم کو ای رکشا نہیں چاہیے، ہم کو قلم چاہیے، ہم کو اسکول چاہیے، ہمارے بچوں کی سیفٹی چاہیے. لیکن ہمیں کیا ملا؟ 500 روپیہ بے روزگاری بھتہ. ہم کو بے روزگاری بھتہ نہیں چاہیے 500 روپیہ، ہم کو روزگار چاہیے. ہمیں سرکار میں حصے داری چاہیے، ہمیں نوکری چاہیے. آپ بتائیے مجھے، آج جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ 100 سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین
इलेक्शन लड़ करके क्या कर लेगी? सुनिए, हम 100 सीट पर नहीं 403 सीट पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा चुनाव लड़ रहा है। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो संयोजक हैं, जो कन्वीनर हैं, वो बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं, जिनकी जन अधिकार पार्टी है, वो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। इंशाअल्लाह ताला ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इस इलेक्शन में 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन ला करके रहेगा। मैं अपने उन मौर्य समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों का बीजेपी ने इस्तेमाल किया और योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं नहीं था। ये कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब 300 से ज्यादा मौर्य समाज, सैनी समाज, कुशवाहा समाज सबने मिलकर के बीजेपी को वोट डाला। और जब इन्होंने वोट डाला, क्यों डाला था? क्योंकि इनको ये कहा गया था कि मौर्य समाज का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, जो पिछड़े समाज से आता है। लेकिन हुआ क्या? 300 से ज्यादा सीट आपने इनको दिलाई, और जब ये जीत करके आए तो एक ठाकुर समाज जो उत्तर प्रदेश में 4% है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। आपको क्या मिला? आप बताइए मुझे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर अगर कोई आवाज है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, तो वो एक आवाज है। दादरी से लेकर के बाबरी तक, लिंचिंग पर, एनआरसी पर, ट्रिपल तलाक पर सब के सब खामोश थे। यूएपीए जैसा कानून बना, उस पर भी समाजवादी पार्टी खामोश नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के साथ खड़ी थी, जो हमारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत है कि आप अपनी जमात को मजबूत करिए, आप अपनी पार्टी को वोट डालिए। अगर मगर लेकिन नहीं। मैंने सुना है कि बड़े बड़े दाढ़ी और टोपी वाले जो 4 महीना पहले से दाढ़ी बनवाना बंद कर दिए थे, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया जा रहा है और वो मुस्लिम इलाकों में भेजा जा रहा है कि तुम जाओ और मुस्लिम वोटरों को बहकाने का काम करो। ये प्रीपेड लोग हैं, ये तीतर हैं, जो अपने आका के इशारे पे, उनके पैसे पर आपके इलाकों में जाकर के आपको बहकाने का काम करेंगे। इनसे होशियार रहिएगा और इनसे पूछिएगा जब ये आपके इलाके में जाएंगे कि आप बताइए कि एनआरसी पे अखिलेश यादव क्यों खामोश थे। आप इनसे पूछिएगा ट्रिपल तलाक पर क्यों खामोश थे। आप इनसे पूछिएगा कि जब हमारे बच्चों की लिंचिंग हो रही थी, ये क्यों खामोश थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप किसी अगर मगर लेकिन में मत पड़िएगा। आपको मजबूती के साथ अपनी जमात के साथ खड़े रहना है और आपको 10 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर के मुत्तहिदा तौर पर पतंग वाले चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके आप अपने कैंडिडेट जो सीवाल खास से रफत खान साहब हैं, ये सिर्फ रफत खान साहब की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये कामयाबी आपकी कामयाबी, ये गरीब मजलूमों की कामयाबी है। ये लड़ाई किसी जात और बिरादरी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई मजलूम वर्सेस जालिम है। तो आप आइए, हमारे साथ आइए और जालिम के खिलाफ हम इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से पंजा आजमाइश करेंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी बात को सुनने के लिए वक्त दिया। आपके दरमियान में पार्टी के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब खिताब फरमाएंगे। आप उनके खिताब को सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले सीवाल खास के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी रात को भी आपने इस वर्चुअल रैली के जरिए आप हमसे जुड़ रहे हैं और हमको ये मौका इनायत फरमा रहे हैं कि हम आपको अपनी बात कह सकें। ये वर्चुअल रैली सीवाल खास की विधानसभा के मजलिस के उम्मीदवार जनाब रफत खान साहब की ताईद में मुनक्कद की जा रही है और हम आपको सिर्फ यही बताने आए हैं कि 10 फरवरी के दिन आप तमाम लोग मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस के उम्मीदवार को अपनी दुआओं से, अपने वोटों से कामयाब करिए। आप जानते हैं कि मजलिस ने
बाबू सिंह कुशवाहा साहब की पार्टी से अलायंस किया, एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, जिसमें हमने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता और आवाम इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने वोट से सत्ता से नवाजेगी तो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब होंगे और 2.5 साल एक दलित समाज के जिम्मेदार को ये अजीम ओहदे पर फायज किया जाएगा। वहीं पर हमने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक मुसलमान अल्पसंख्यक समाज से होंगे और 2 अति पिछड़ा समाज से उनको बनाया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम अपना हिस्सा चाहते हैं। बरसों आपने सिर्फ किसी के वादे पर, किसी के दिल फरेब बातों को सुनकर उन पर भरोसा किया और आपने अपना वोट देते रहे, मगर अगर हकीकी मानों में आप देखेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं हुआ और खास तौर से कमजोर तबकात का कोई फायदा नहीं हुआ। आदादोशुमार डेटा ये बताता है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पिछड़ा कोई समाज है, दलितों से पिछड़ा कोई समाज है, तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। जो बेरोजगारी युवाओं में है वो मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा है। गरीबी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज में है। सबसे कम अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो वो 1.70% मुसलमानों के पास है। सबसे कम ग्रेजुएट अगर है 3% तो मुस्लिम समाज में है। सबसे कम पीजी होल्डर्स हैं 1% तो मुस्लिम समाज में है। सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई लिटरेट लोग हैं 40% तो मुसलमान है। सबसे कम अगर महाना अगर कोई अपने घर में खर्चा करता है तो वो मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन पर आपने भरोसा किया, उन पार्टियों को आपने वोट दिया, या जिन सियासी पार्टियों ने हमसे वादा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्होंने सिर्फ जबानी तौर पर इन नारों को दिया और लोगों के वोट हासिल करने के लिए वोट तो हासिल कर लिया, मगर विकास के नाम पर धोखा दिया गया है। मैं आप खास तौर से सिवाल खास की जनता से, वहां की गयूर अवाम से, मेरे गयूर नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है। आपके मुस्तकबिल को अच्छा रखने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और याद रखिए, जब तक आपके पास अपनी सियासी क़यादत नहीं होगी, जब तक आपके पास अपनी एक सियासी आवाज नहीं होगी, आपके नाइंसाफियों का खात्मा नहीं होगा, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। हिस्सेदारी की लड़ाई में आप इसमें अपना साथ दीजिए। हमको अपना हिस्सा हासिल करना है, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे विकास के मामले में हो, ठेकेदारी के मामले में हो, या फिर रोजगार के मामले में हो, हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जमहूरियत के तकाजे ये हैं, जमहूरियत की तल्ख हकीकत भी यह है कि लोकशाही में आप सिर्फ वोट डालने वाले ना बने, बल्कि वोट लेने वाले बने। अगर आप वोट लेंगे और सिवाल खास से रफत खान साहब को कामयाब करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब हमारा ये नुमाइंदा, आपका नुमाइंदा, आपका खादिम बनकर जाएगा तो ये अपनी जबान को बंद नहीं रखेगा, ये अपनी बुलंद आवाज में जायज मुतालिबात को, आपके हुकूक की लड़ाई लड़ेगा। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो बड़े दावे करते हैं अल्पसंख्यक समाज के, पिछड़े समाज के, जब जीत कर चले जाते हैं तो इनकी जबानें बंद हो जाती हैं। इनको मजलूम की तकलीफ याद नहीं आती, इनको नाइंसाफियां इनको नजर नहीं आती। अगर कोई आवाम का नुमाइंदा होता है, कोई विधायक बनता है, तो वह विधानसभा में जाकर सिर्फ बैठकर तमाशाई नहीं बनकर बैठना चाहिए, बल्कि आवाम के मसाइल को उठाना चाहिए। ये काम मजलिस के तमाम विधायक करेंगे। मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि आप अपना एक कीमती वोट 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का मुजाहिरा करिए। और वहीं पर मैं आपको बात भी बताना चाहूंगा कि सिवाल खास में आप देखते हैं कि जो मौजूदा विधायक है कुछ काम नहीं किया,
समाजवादी की सरकार रही तब भी कुछ काम नहीं किया। सिवाल खास में ना रेल की कनेक्टिविटी है, ना रोड है। आप सिवाल खास विधानसभा के देहात में, गांव में चले जाइए, रोड नहीं मिलती आपको। अगर बारिश हो जाती तो लोग चल नहीं सकते। और आप ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कोई हाई स्कूल नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पूरी विधानसभा में तहसील भी नहीं है। तो किस बुनियाद पर आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक वोट का मुतालबा कर रहे हैं? मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप रफत खान साहब को कामयाब करिए, जो काम इनकी सरकार रहते हुए भी नहीं कर सके। मजलिस आपसे वादा कर रही है कि एक मौका आप हमारी पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार को दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये मसले मसाइल जो आपके हैं वो पूरे हम इंशाअल्लाह मजलिस आपसे वादा कर रही है कि मजलिस उसको हल करेगी। अगर मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ती सिवाल खास से तो इस साहब को वोट भी नहीं मिलता, गुलाम साहब को, क्योंकि मजलिस लड़ रही है, इनकी अहमियत बढ़ गई, इसलिए इनको टिकट दिया गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको समझना है। और मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूंगा कि 5 साल में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जब आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो युवा ग्रेजुएट है 50% नौकरी की तलाश में है, बेरोजगार है। जो टेक्निकल एजुकेशन है 45% नौकरी की तलाश में है। जिसके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, 60% लोग नौकरी की तलाश में है। कौन सी नौकरी दी गई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? और झूठा वादा करते हैं। जब 2017 में सरकार बन रही थी तो कहा कि 70 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और फिर आज कहते हैं कि हमने सिर्फ 6 लाख को दिया। तो क्या होगा उन युवाओं का, क्या होगा उनका, क्या मुस्तकबिल होगा, वो कैसे अपनी जिंदगी में आगे तरक्की कर सकेंगे? इन चीजों पर आपको गौर करना है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गौर करिए। सरसों के तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, और किसान तो रात रात भर जागकर अपनी खेत को बचाने के लिए फिक्र में रहता है कि कहीं जानवर आकर मेरी फसल को ना खा ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार ने दिन का चैन और रात का सुकून उत्तर प्रदेश की जनता से लूट लिया है। नौजवानों के सामने उनका मुस्तकबिल, उनको तारीख नजर आ रहा है, अंधेरा नजर आ रहा है। माँ और बहनें परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस के उम्मीदवार को अपने वोट देकर कामयाब करिए। और आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले की सरकार में पैसे कब्रिस्तान को चले जाते थे, अब वो पैसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो पैसा अब आस्था के केंद्र और विकास में लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बताओ, जब गंगा पर लाशें तैर रही थी तो कहां थे आप? कहां थी आपकी सरकार? लोगों को, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जमीन नहीं मिली, शमशान में लकड़ी नहीं मिली। तो आज आप कह रहे हैं कि पहले कब्रिस्तान को पैसे जाते थे, आज आस्था के केंद्र बनाए जा रहे हैं, विकास बनाया जा रहा है। क्या आप मजाक उड़ा रहे हैं? जो कोविड की सेकेंड वेव में जो लाखों लोग उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत की गलतियों की वजह से, आपने संविधान के तहत तो जिम्मेदारी दी गई थी, आप उस जिम्मेदारी को भूल गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों पर आपको गौर करके मुत्तहिदा अपने पार्टी को कामयाब और कामरान करिए। ये बड़े दिल फरेब नारे लगाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से कि नून खाएंगे, फुलां को जिता देंगे। वहीं पर सपा आरएलडी के लोग नारे लगाते हैं कि भैया तुझ पर हमारी जवानी कुर्बान। अरे किसी की जवानी किसी पर कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। मजलिस आपसे कहती है, मजलिस का नारा यह है कि नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन बीजेपी को हराना है इस चुनाव में। हमारी पूरी कोशिश है कि दोबारा बीजेपी सत्ता में न आए, और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये है कि आपकी एक सियासी ताकत उभरे, आपके वोटों से आपके नुमाइंदे, आपके विधायक कामयाब हो, जो आपकी आवाज बन सके, जो आपकी तकालीफ को समझ सके, जो आपकी मजबूरी, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ सके। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है
کہ 10 فروری کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے سیاسی شعور اور اپنے اتحاد اور حصے داری کی اس جنگ میں آپ اپنا تعاون اور اپنی ووٹ کے ذریعے اس کو کامیاب کریں. حصے داری کی لڑائی میں آپ کی تعاون، آپ کے دعاؤں کی، آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے. شکریہ. السلام.